Good morning, students. So let us start our class. Let us begin with the revision of the topic that we have seen in the last class. So there we saw the string types which are available in Python. Over there we have seen the different types. The first one was single line strings, the second one was multi-line string. Single line string, we saw that the string has to be written in one line. If we try to write it in the second line, then what happens? An error generally occurs on our screen, which is EOL. EOL while scanning string literal. So that generally appears to be a kind of error if you try to write a single code in multiple lines. So for that, what is the way out using which you can write a single line string into multi lines? So the first way which was given to us was using the backslash. At last you have to do what? You have to use a backslash at the end of the line, and then you can go to the next line and write the other part of that particular string that you need to write. So what will happen? The backslash sign will let interpreter know that you are continuing the string and the string has been written in the next line. So this was the first way. In this way, the output which gets generated is like something which is given in these lines. Let us see what it is. If you write hello backslash world, so the output that gets generated at the time of printing of it will be hello world. It is writing it continuously. Whatever way you may have used, it is not writing it in this way, but it is writing it continuously. So this was the first way. But if you want to print the output in the same way as you are giving it as an input, then what you need to do? So for that you have to use the second way which is with us, and the second way is using the triple quotation marks. If you use triple quotation marks, so then what happens? So the output gets printed the way you give the input to it. Alright, so this is the input which is given to us. Let us see. The string 1 is the input. You can see the string has begun with triple quotes. These are single triple quotes, and it has ended with triple quotes, which are again single triple quotes. So you can see hello is written, then you have put an enter, then written world, then full stop, again enter, there I come, 3 exclamation marks, enter, and cheers, and then full stop, then enter, and then triple quotation marks. So if you have written an input in this way, so the output that will be generated will be the same as you have given the input. Means wherever you have put the enter, there you will see a line getting changed in the output as well. So you can see this is the output which has got generated. If you would have used backslash instead of this, so it would have printed in a single line and a continuous string has got been printed. But as you have used the triple quotes, so the output has been given in this particular way. Alright, so this was something that we have seen in our previous class. Let us now move to the other part which is with us. Size of string was also seen. I already told you that escape sequence, if it is used, the escape sequence will be counted as a single character. You can see this in this particular example, which is backslash a and b. So backslash a is audible alert, so it will be counted as one character, and b is again a single character, so this will be making a total of 2 characters. So 2 will be the size. CMA span, again CMA 5 character, backslash apostrophe will be single character, so 6, and s is 7, and space is 8, and pen is having 3 characters, so 8 plus 3 11 characters. I already told you MEs A, M, Y and S 4 characters, and apostrophe will be the 5th character, so the output will be 5 instead of 4 which is written in your book. So in book it is printed 4, which is wrong. The output will be 5, which will be the correct answer. Next, we have already seen this also. Enters get counted when you use triple quotes, and backslashes generally don't get counted. So you can see the output of this string to be 3. The size of the string will be 3 because these enters won't be counted, and over here it will be HELLO, so it will be 5 characters. Okay, this generally, this gets counted, and this backslash does not get counted. So this will be 5 characters and this will be 3 characters. We already seen this in our previous class.
And if we have a long string with us, so for that long string, what will happen? Informatics practices is a long string, so counting it would be difficult. So they have given us a function. What you can do, you can write str1 is equals to informatics practices, and then you can write len str1. So what will happen if you write len str1? So it will count the length of that particular string 1 which you have given it in the input. So this is it, which we have seen in our previous class. Let us now move to the topic, which is our today's topic, that is based on numeric literals. So numeric literal is again the third type of literal that we are going through. The first one was keywords, the second one was identifiers, the third one is literals, and the literals have different types of literal. So this numeric is again a type of literal only. This is also a constant value, the numeric values. So those all numeric values will be counted in the numeric literals. So let us see how many kinds of numeric literals are generally with us. So we have three different kinds of literals with us. The first one is int with signed integers, the second one is float, and the third one is complex. We will be seeing what all these three are, but let us see what details are given to us over here. Alright, int, as the name suggests, integers, integers can be positive as well as negative, but there cannot be a decimal value. There will be only the numbers which are without decimal. So what will happen for the values which are having decimal values? So those will be coming under the float. So float is what? Float is a real number. It is a consistence of a real number which is having decimal point in it. All right, and the third one is the complex one. Under root 1, under root minus 1, under root 2. So all these values are called as complex values, where one part is generally a number and the second part is an imaginary number. So that is a complex one. So there are three types of numeric literals which are given to us. Here you can see they have written 4, but there are generally three kinds of literals which are given to us. Next, let us move to the next part. Again, they have done what? They have explained us all these literals in detail. So the first one is integer literals. Integer literals are what we have already seen in the last page. The literals which are having values without fractional parts, so all those will be coming under the integer literals. Again, you can see over here, these integer literals can also be signed literals, means negative and positive both numbers are allowed in these integer literals. You cannot use comma. This is not a valid character for integer literals. And if you have not put any sign, means if this is a number and if you have not put any signs, so the interpreter will consider it to be a positive literal. All right, but if you have already put a sign, so it will be a negative literal. So this is it. Next thing that we have to see is if you have a number 10,000. So and if you write 10,000 like this, 10,000, so this will be an invalid integer literal, because you are not allowed to use a comma over here. All right, instead if you need to write 10,000 as a number, so you have to write it like this. You cannot write it like this. All right, it is not allowed. So this will be invalid. This is the valid type, which is 10,000 without any commas. All right, this is already given here. Commas cannot appear in the constant integer literals. All right. Again, these integer literals are again classified into different types. So you can see the classification goes on. The first one was tokens. Tokens were divided into 5 classifications. Again, in those 5 classifications, there were keyword, identifier, literals. Again, these literals got divided into different 5 literal classifications. Again, in those classifications as well, there is one type which is integer. There is one type which is numeric, and numeric is again classified into 3 types. And the first one is integer, and integer is again classified into 3 types. So there are various classifications which are given under it, which you have to read and you have to understand.
The first one is decimal integer literals. All the values that we generally write are decimal integer literals. 10, 20, 30, 40, 1, 5, 11. All these are what? They are generally decimal integer literals. Again, the second type which is given to us is octal integer literals. What are octal? Octa means 8, combination of 8 digits. Decimal means combinations of 10 digit. So combination of 10 digit means what? Okay, combination of 10 digits means what? Means 0 to 9, all digits will be covered in this. So if a number has been formed using any digits from 0 to 9, so it will be a decimal integer literal. Again, the second type which is given to us is octal integer literal. What is octal? Octal means 8. So there will be only 8 digits that will be used to form an octal integer. So which are those digits that will be used? So it will be like 0 to 7. Only 0 to 7, as 0 has been counted, so 8 won't be there. 0 to 7 means only 8 digits, है ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So a total of 8 digits is there in octal, है ना? 8 and 9 are not the valid characters for integer literals. इंटीजर लिटरल्स के बारे में, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये होगी कि ये जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है? 0 से ये नंबर्स स्टार्ट होते हैं. पहली बात क्या देखी हमने कि 0 से लेकर 7 तक के डिजिट से मिलकर बनता है एक ऑक्टल लिटरल, और इसकी बिगिनिंग जो होती है, नंबर कैसे लिखे होते हैं? 0 ठीक है. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर इंस्टेंस डेसिमल इंटीजर 8 विल बी रिटन एज 0010. कुछ कन्वर्जन होता है, कुछ तरीका होता है डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट करने का. तो इन्होंने ये प्रोसेस को फॉलो किया है, और उसके बाद जब उन्होंने 8 जो एक डेसिमल नंबर था, उस डेसिमल नंबर को इन्होंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो उसकी वैल्यू क्या आई? 0010. ठीक है. तो ये एक ऑक्टल लिटरल है. यहाँ पर इन्होंने उसको मैथमेटिकल वे में भी लिख के बताया हुआ है कि 8 जो नंबर है वो डेसिमल में है, और इसको जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया? 10 में कन्वर्ट हो गया, जब उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया. तो अब जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया है तो ऑक्टल को लिखने का तरीका होता है 0 तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक. 0028, 0019, 00987. ये क्या है? हाँ चलो, ये जो इन्होंने बताए हैं ये इनवैलिड कैरेक्टर्स बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 और 9 यूज़ हो रहा है. तो ये 8 और 9 यूज़ होने वाले, तो सीधी सी बात है कि ये इनवैलिड हो जाएंगे. बट यहाँ पर जो 0 और O लिखा है ये बिल्कुल सही है. नंबर्स 0 और O से चालू होंगे. चूँकि यहाँ पर 8 और 9 आ गया है तो ये क्या हो जाएंगे? इनवैलिड कैरेक्टर्स होंगे. इनमें कभी भी 8 और 9 नहीं आएगा जब ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे तब. अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हेक्साडेसिमल. अब हेक्साडेसिमल मतलब क्या? हेक्सा मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब होता है 10. तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हो गया? 6 + 10 = 16. मतलब कि एक हेक्साडेसिमल नंबर में कितनी डिजिट्स होती होंगी? तो यहाँ पर टोटल 16 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ये हेक्साडेसिमल नंबर बनता है. तो कौन कौन सी 16 डिजिट्स होंगी? नंबर तो 0 से लेकर 9 तक 10 ही नंबर होते हैं, तो बचे हुए 6 क्या होते हैं? तो देखो, पहले तो ये जो हेक्साडेसिमल है उसमें 0 से 9 तक के नंबर्स तो इस्तेमाल होते ही होते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पर A से लेकर F तक के अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक हेक्साडेसिमल नंबर. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि 12 जो है डेसिमल में, इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो वो होता है 0014, और अगर इसी को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो तो वो होता है 0xc. ठीक है. तो ये उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है. इसकी बिगिनिंग कैसे होती है? तो यहाँ पर ये नंबर्स को लिखने का तरीका होता है 0x या 0x. जैसा कि यहाँ पर ऑक्टल में क्या था? 0O था ना, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है? 0x.
तो यहाँ पर 0x लिखकर इनको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी जब इसको कन्वर्ट किया ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में तो कन्वर्जन आया C, पर शुरू का ऐसे होता है ये 0x से, सो 0x इन्होंने शुरू में लिख दिया, और 14 का कन्वर्जन क्या हुआ ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में, वो हुआ C, तो ये OXC नंबर बन जाएगा। यहाँ पर नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 0x BK9 0x PQR 0x 19AZ, तो ये इनवैलिड हैं क्योंकि यहाँ पर Z भी यूज़ हुआ है और PQR यूज़ हुआ है, पहले वाले में X यूज़ हुआ है, K यूज़ क्यों हुआ है, जो कि इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A से लेकर F तक के कैरेक्टर्स ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल का अगला टाइप है वो है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के बारे में भी हम बखूबी जानते हैं। फ्लोटिंग मतलब क्या, जिनमें डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगेन डेसिमल वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी, इट कैन बी साइंड और अनसाइंड। साइंड है तो प्लस या माइनस साइन होगा, अनसाइंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, -10 है तो ये साइंड है, अगर मैंने 10 लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर उसको एक पॉजिटिव, एक अनसाइंड फ्लोटिंग नंबर मानकर इसको पॉजिटिव वैल्यू के तौर पर रीड करेगा, ठीक है। साइन हो भी सकता है, साइन नहीं भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। अगर साइन नहीं लगा है तो सिंपल सी बात है वो पॉजिटिव नंबर है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं वो क्या क्या है। पहला तो 2.0 डेफिनेटली एक डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। 17.5 भी है, -13.0 भी है, क्योंकि ये भी क्या है, डेसिमल वैल्यू है, साइंड डेसिमल वैल्यू है। ये -0.00625 ये भी एक साइंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसमें भी डेसिमल लगा हुआ है। 0.3 को हम रीड करेंगे 0.3, ठीक है। पॉइंट को 0.3 रीड किया जाता है, और 7 पॉइंट अगर लिखा हुआ है तो 7 पॉइंट का मतलब होगा कि वो नंबर है 7.0, ठीक है। वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसके बाद 0 लग जाएगा, 0.0 लग जाएगा। तो ये कुछ वैलिड यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इन्होंने बताए हुए हैं। ये कुछ इनवैलिड भी यहाँ पर बताए हुए हैं, आप इन इनवैलिड कैरेक्टर्स को भी देख सकते हो। इनवैलिड में देखो पहला दिया हुआ है 7 इनवैलिड क्यों है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर, तो इनवैलिड हो जाएगा। अगला दिया हुआ है प्लस, चलो ठीक है साइंड है, बट 17/2, तो यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है ये वाला स्लैश, ये स्लैश एक इनवैलिड साइन है। किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के अंदर ये स्लैश का साइन यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपको +17/2 लिखना ही है तो आप लोग इसको सिंपली अगर डायरेक्टली 8.5 लिख दोगे तो चल जाएगा, पर आप इसको 17/2 नहीं लिख सकते। यहाँ पर तीसरा देखो, ये तो सही दिख रहा है, गलत क्या है, पहली बात तो यहाँ पर कॉमा लगा है, दूसरी बात 2 डेसिमल पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो डबल डेसिमल पॉइंट्स नहीं हो सकते। चलो ठीक है, नीचे वाले में तो नहीं है डबल डेसिमल पॉइंट, इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है 17 के बाद, और कॉमा जो होता है वो एक इनवैलिड कैरेक्टर होता है, तो वो यहाँ पर इनवैलिड कहलाएगा। अगला जो होता है सेकंड तरीका जो होता है इस फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का, पहला तो हमने देख लिया, ये जो दूसरा तरीका होता है ये कहलाता है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म आपने देखा होगा, किसी भी नंबर की पावर में अगर कुछ लिख दिया जाता है तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर भी जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते हैं उसमें भी एक्सपोनेंट फॉर्म में भी नंबर को लिखा जा सकता है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो नंबर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट कहलाता है मैंटिसा और एक पॉइंट कहलाता है एक्सपोनेंट, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल के लिए बताया हुआ है 5.8 एक नंबर है, इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप देखो इसको इन्होंने कैसे लिख के बताया है, 0.58, 5.8 को क्या लिख दिया 0.58 और इनटू कर दिया 10⁻1। तो अगर आप 0.58 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका आउटपुट 5.8 ही आना है। तो इन्होंने इसको डेसिमल वे में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 0.58 इंटू 10⁻1 लिखा है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है 0.58 E01। अब ये जो E01 है, E01 का मतलब होता है 10⁻1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख देता E02, तो E02 का मतलब क्या होता है 10⁻2। सिमिलरली अगर लिख देता E03, तो E03 का मतलब होता है 10³ 10⁻3। तो ये इन्होंने देखो नीचे एग्जाम्पल्स में
भी बताया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं, एक बार इनको रीड कर लेते हैं। 152E05 मतलब 152 इंटू 10⁵, 152E07 मतलब 1.52 इंटू 10⁵, 0.152E08 मतलब 0.152 इंटू 10⁸, 15 अगला नंबर 152 इंटू E⁸08, उसके बाद वाला 152 E+08, ये भी एक तरीका है। यहाँ पर पॉजिटिव भी लगा के बता सकते हो कि हम पावर में एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से भी +8 -8 -10 -8 ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है। साइंड वैल्यूज़ भी यहाँ पर वैलिड हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक नंबर दिया हुआ है ये वाला, जैसे कि इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, ये तो यहाँ पर क्या होगा 0.25E-4, इसका मतलब क्या हुआ 0.25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब पावर जब माइनस में होती है तो वो नंबर डिनोमिनेटर में चले जाता है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, है ना। तो ये इन्होंने बताए हुए हैं। नीचे कुछ और इनवैलिड एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं क्योंकि ये इनवैलिड हैं, ठीक है। तो 1.7E ये एक इनवैलिड है क्योंकि E के बाद कितनी पावर देना है 1 2 3 ये नहीं बताया। 0.17E⁻².3, अब जो E⁻ में हम देते हैं तो वहाँ पे हमेशा विदाउट डेसिमल का नंबर आएगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू वहाँ पर नहीं आ सकती, ये आपको ध्यान रखना है। 17,225E02 पूरा सही है, बस 17 के बाद जो कॉमा लगा दिया वो गलत है, कॉमा नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स हमको बताए हुए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताया है इन्होंने, पाइथन गिव्स नो एरर व्हेन यू असाइन अ न्यूमेरिक वैल्यू विथ कॉमा इन इट। देखो हाँ, इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है जब कभी आप कॉमा लगाकर भी कोई वैल्यू पुट करते हो तो पाइथन उसमें एरर नहीं देता, बट पाइथन उसको वो डेटा टाइप भी नहीं देता। जैसे कि यहाँ पर आपने एक वैल्यू दे दी a=1,234, तो यहाँ पर पाइथन ने उसको देखो इंटीजर नहीं लिया, पाइथन ने उसको कोई दूसरा ही डेटा टाइप दिया है। क्या दिया है, टपल, उसने कोई दूसरा डेटा टाइप दिया, पर उसको उसने इंटीजर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर के लिए तो वैलिड था ही नहीं ना, कॉमा लग गया वैलिड नहीं था। अगला बी में देखो इन्होंने क्या लिख के बताया, बी में लिख के बताया 17,225 E02 सही है, बट कॉमा लगा दिया तो गलत है। तो आप देख सकते हो बी का जो इन्होंने जब डेटा टाइप पता करने की कोशिश करी तो वहाँ पर भी क्या आया, टपल, पर वहाँ पर भी फ्लोट नहीं आया। फ्लोट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसको कॉमा लगा दिया है, इसलिए। यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि ये जो टाइप TYPE फंक्शन है, ये टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी आपके दिए हुए इनपुट का डेटा टाइप पता कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो, str1 एक वेरिएबल लिया, या चलो a एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू पास करी हेलो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब हेलो जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास किया है तो यहाँ पर वो उसको इंटीजर या फ्लोट में नहीं देगा, वो उसको स्ट्रिंग या कैरेक्टर में देगा, जो भी उसका डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होने वाला है वो उसमें ही उसको डिस्प्ले करेगा। अगला जो होता है एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं बूलियन। बूलियन लिटरल है, ये जो चौथा टाइप का लिटरल है जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। बूलियन लिटरल का मतलब होता है कि जनरली बूलियन मीन्स ओनली 2 थिंग्स, ट्रू और फॉल्स, है ना। बूलियन मतलब 2 ही चीज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो जब कभी आप बूलियन वर्ड सुनो तो इसका मतलब हमेशा यही होगा 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, मतलब वहाँ पर ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही होगी। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। अ बूलियन लिटरल इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 बूलियन वैल्यूज दैट इज ट्रू और फॉल्स, बूलियन ट्रू और बूलियन फॉल्स। अ बूलियन लिटरल कैन आइदर हैव वैल्यू एज ट्रू और एज फॉल्स। तो बूलियन लिटरल के अंदर 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, ये PDF आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस PDF को रीड करके देखिए, क्योंकि क्लासेस तो थोड़ा क्विकली चलता है, आप लोगों को इन चीज़ों को समझने के लिए एक बार और गो थ्रू करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद PDF को भी पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग बिल्कुल रेगुलरिटी से इन वीडियोस को पढ़ो। ये जो क्लासेस आपकी यहाँ पर हो गई, ये क्लासेस आपको अब जब स्कूल लगेगा तब शायद फिर से रिवाइज़ ना करवाई जा सके, तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप लोग इसको पढ़ें। क्योंकि लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने देखा आप लोगों ने इस वीडियो को व्यू ही नहीं किया था, ठीक है।
तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप व्यू नहीं कर रहे हैं, तो बेटा आप लोगों का ही नुकसान है। आप लोगों को रेगुलरली इन वीडियोस को देखना है। आप लोगों को अगर डेटा का इशू है तो आप लोग 240 क्वालिटी करके यूट्यूब पर देख लो, कम क्वालिटी करके यूट्यूब पे देख लो, ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करेगा। और अगर आपके पास डेटा बाउंडेशन नहीं है तो आप लोग 480, 720, 1080 पर भी इस वीडियो को देख सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस, है ना। तो कम क्वालिटी में देखो, 240 पर देख लो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है वीडियो देखने में, तो ऑटोमेटिकली आप यूट्यूब पे देखोगे साइड में 3 डॉट्स आते हैं। उन 3 डॉट्स में जाके क्वालिटी का एक ऑप्शन होता है, आप उस क्वालिटी के ऑप्शन पे जाकर क्वालिटी को 240 पे सेट कर दो। 240 भी इजीली रीडेबल है, जो ये पीडीएफ वो मैं आपकी स्क्रीन पर ओपन करता हूँ, ये 240 पर भी इजीली रीडेबल है। बट फिर भी अगर आपको लगे तो आप 360 पे भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो आप 360 पे भी स्विच कर सकते हो। 240, 360 आप लोगों का ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करेगा अगर आप लोगों के पास डेटा शॉर्टेज है तो। बट डेटा शॉर्टेज के कारण आप लोग ऐसा ना करें कि आप वीडियोस ही स्किप करें। आप कम क्वालिटी में देखोगे तो डेफिनेटली आपका डेटा ज़्यादा कंज्यूम नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। कोई क्लास मिस हो जाती है तो फिर इसमें बेटा आप लोगों का ही नुकसान है। आप नेक्स्ट क्लासेस देखोगे तो आपको फिर वो भी समझ में आने वाली नहीं है। तो प्लीज़ जो आप लोगों को अपलोड करके दिया जाता है मेरे सब्जेक्ट में या बाकी सब्जेक्ट्स में, आप लोगों को उसको उसी दिन कंप्लीट कर लेना है, आपको उसी दिन पढ़ लेना है। ऑलराइट, तो आप लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें और बिल्कुल इस चीज़ को आप लाइटली ना लें। यही आप लोगों की क्लासेस हैं और आप लोगों को इन पे ही फोकस करने की आदत डालनी है। सो प्लीज़ बी habitual to it, show some sincerity of using this way of learning, way of understanding, है ना। तो way of studying, this way you have to understand. All right, so I think this is it. Let us see you in the next class. Thank you students.